World News Headquarters. السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہریش زہیب. میں ہوں ارباب جہانگیر. اور میں ہوں شائستہ شہزاد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے. لندن میں تماشا, نواز کی مرضی نہیں چلے گی. عمران خان کا اعلان. آزادی مارچ رواں دواں. ارشد تحقیقات میں اہم پیش رفت. شہباز کی بڑی ناکامی. اور فائنل کے لیے قوانین تبدیل. نواز شریف ہمیشہ اس آدمی کو اوپر لاتا ہے جس سے اسے فائدہ ملے. گجرات میں عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ سے پرجوش خطاب. شریفوں کو نشانے پر لے لیا, کہا شہباز شریف سزا یافتہ شخص کے مشورے سے اہم فیصلے کر رہا ہے. سزا یافتہ شخص ملک سے باہر بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے, یہ بڑا المیہ ہے. اب ملک کی قسمت کا ہر بڑا فیصلہ وہ کرے گا جو گزشتہ 30 برس سے ملک سے باہر پیسہ لے جا رہا ہے. غیر ممالک میں کوئی کرمنل ایسا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ برطانیہ میں کسی کرمنل نے NRO لے لیا ہو. پاکستان کا پرائم منسٹر وہ جاتا ہے برطانیہ, جو پاکستان کا سزا یافتہ مفرور جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا تھا کہ وہ جناب علاج کروانے جا رہا ہے, یہ اس کو ملنے جا رہا ہے. یہی نواز شریف مشرف کے دور پہ اس ملک سے جھوٹ بول کے گیا تھا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, جبکہ 8 سال کے بعد سعودی عربیہ کا شہزادہ آیا نہیں اور اس نے معاہدہ دکھایا جو اس نے مشرف سے کیا, اور اس کو NRO ملا تھا. تب اس کے چوری کے کیسز تھے حدیبیہ پیپر مل کے, وہ رک گئے تھے. اور وہ ابھی سزا یافتہ آدمی آج پرائم منسٹر پاکستان کا جا رہا ہے جو اس کا بھائی ہے. اور میں بھائی کا بھی بتا دوں کہ اس کے بھائی کو اور بیٹے کو سزا ملنے والی تھی. اس کو سازش کے تحت اوپر بٹھایا گیا. آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ گواہ بچارے 2 مہینے کے اندر سارے گواہ مرے, اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے ان ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. جو ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹر تھا FIA کا, وہ بھی مر گیا. یہ اب جا رہا ہے وہاں, اور فیصلہ کیا ہونے لگا ہے؟ پاکستان کا فیصلہ. وہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان میں, آرمی چیف کی, اس کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آ گیا جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی, میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نہیں بن. نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا, اس کی چوری کیسے بچے گی, اور پھر آگے بھی مزید کہ اس ملک کی تقدیر کے الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے, کتنی دیر کیئر ٹیکر, یہ سارے فیصلے ایک ملک کا بڑا 30 سال سے جو اس ملک کو چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے, وہ فیصلہ کرے گا. سیولائزڈ ملک, جن کو ترقی یافتہ ملک ہم کہتے ہیں, وہاں کو تصور نہیں کر سکتا اس طرح کی چیز. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہاں قانون کی حکمرانی ہے. جو بھی ملک ہے, برطانیہ میں جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر قانون کی حکمرانی ہے, رول آف لا ہے. وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتور کہے, چوری بھی کرے, کرپشن بھی پکڑی جائے, سزا بھی مل جائے, لیکن وہ NRO لے لے. کبھی برطانیہ میں سنا ہے کسی نے NRO نہیں لیا؟ کسی کی مجال ہے کسی طاقتور کی کہ وہ کہے کہ ہاں جی میں نے جرم کیا ہے, لیکن تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے؟ کپتان کا حقیقی آزادی مارچ سے پرجوش خطاب. کہا ملک کی تباہی کا سبب قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے. میں سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کرا سکتا. پھر آپ سوچیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ ملک میں کبھی بھی انصاف کا نظام قائم نہیں ہونے دیں گے. ملک کو آزاد کرنے کے لیے انصاف ضروری ہے. ریاست مدینہ میں عدل قائم ہونے پر خوشحالی آئی. ریاست مدینہ میں عدل قائم ہوا, سزا یافتہ شخص ملک کے لیے فیصلہ کر رہا ہے, یہ بڑا المیہ ہے. کی مجال ہے کسی طاقتور کی کہ وہ کہے کہ ہاں جی میں نے جرم کیا ہے, لیکن تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. جو لانگ مارچز کیوں کی تھی انہوں نے میرے خلاف؟ NRO لینے کے لیے. کیوں انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تھا فیٹف کے اوپر؟ NRO لینے کے لیے کہ کسی طرح میں ان کی چوری معاف کر دوں. میری ساری تقریریں سن لیں, پہلے دن سے میں نے کہا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا, کیونکہ یہ کون سے ملک کا نظام ہے انصاف کا کہ بیچارہ چھوٹا چور جیل میں چلا جائے اور بڑے بڑے ڈاکو قانون کے اوپر چلے جائیں. یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ یہاں قانون کی حکمرانی
हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी है। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कह दिया था कि ऐसे निजाम नहीं चल सकते जो छोटे चोरों को जेल में डाले और बड़े डाकुओं को ना पकड़ सके। तबाही का तो सबसे पहले ये सबब है। जो ये सारा आजम स्वाति का केस हुआ, ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। यहाँ ताकतवर डाकुओं से डील की जाती है, उनको जेलों में नहीं सजा नहीं मिलती, डील होती है। इन्होंने स्वाय अपनी चोरी अपने केसेस खत्म करने के लिए, इनकी सिर्फ एक अचीवमेंट है कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का जो कौम का पैसा चोरी हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता सारे वो सारा केसेस खत्म करवा रहे हैं, यानी चोरी हजम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इन्होंने माइशत तबाह कर दी है। इन्होंने कहा 6% ग्रोथ रेट और आज हालात देखें, रोजगार तब क्या था और आज देखें, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट नीचे आ रही है, किसान सड़कों के ऊपर हैं। तो सारी जगह देखें कि क्या इन्होंने क्या है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस जो भेजते थे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी वो कम हो रही हैं, डॉलर कम आ रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा है। ये जिधर नवाज शरीफ लंदन के सबसे महंगे इलाके में बैठा है, किधर से पैसा है इसके पास? कोई एक रसीद बताइए इसने कि किधर से पैसा है। कभी कतरी खत आ जाता था तो कभी क्लिबरी फॉन्ट आ जाती थी, इनके पास एक रसीद नहीं है। यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर गया और वहाँ शान और शौकत में रह रहा है और मुल्क के फैसले कर रहा है। खबरों में आगे देखिए मार्च की अगली मंजिल कहां? और अरशद तहकीकात में नया मोड़। मुझ पर भी कातिलाना हमला हुआ है, इन्होंने सोचा कि मैं गोलियां लगने से डर जाऊंगा। आजम स्वाति बुजुर्ग आदमी है, वीडियो से डर जाएगा। अरशद शरीफ से जो कुछ किया इस पर हम शक में आ गए हैं। उसने ऐसा क्या जुर्म किया था जो उसको ऐसे कत्ल किया गया? कप्तान का 2 टोक पैगाम। कप्तान का कहना था कि इस हमले के बाद मैं पहले से ज्यादा मजबूत। आजम स्वाति भी खामोश होकर बैठ जाएगा, लेकिन उनका हौसला भी बुलंद है। खौफ का बुत टूट चुका है, कौम भी खड़ी हो रही है। सोचा इन्होंने ये था कि जो गोलियां लगी हैं मैं बच गया हूं तो अब मैं डर जाऊंगा, मैं शायद पीछे हट जाऊं। इन्होंने ये सोचा था आजम स्वाति से जो इन्होंने किया कि आजम स्वाति को पहले उन्होंने जोर से तशद्दुद किया। उन्होंने कहा वो 75 साल का आदमी है, शर्म में चुप करके बैठ जाएगा घर में, वो नहीं बैठा। किसी दुनिया के मुल्क में मैं गलाजत की ये इंतहा नहीं देखी कि उसकी वीडियो दे दी, उसकी बीवी को पहुंचा दी, मियां बीवी की वीडियो। यानी मैं मगरबी माशरा अंदर से जानता हूँ, वहां कोई तस्वर नहीं कर सकता इस चीज। और आजम स्वाति को इन्होंने कहा कि अब तो वो शर्म से चुप करके बैठ जाएगा। मैं सलाम करता हूँ आजम स्वाति को कि वो खड़ा हो गया, और वो इसलिए खड़ा हुआ है कि वो औरों को बचाना चाहता है, वो कौम को बचाना चाहता है कि ये जिस तरह का जुल्म हो रहा है, ये जो चोर और डाकू और ये कातिल, वो खड़ा हो गया सामने। और आज कौम उसके साथ खड़ी है, आजम स्वाति के साथ, और ये इस कौम ने अब खड़े हो जाना है। अरशद शरीफ ने क्या जुर्म किया होगा जो उससे ये उसको सजा मिली? उसकी एक सजा है कि इन चोरों को जितना वो बेनकाब करता जा रहा था वो अपनी जान खतरे में डाल रहा। और इन्होंने ये सारे सहाफियों को एक पैगाम दिया है कि देखें ये अरशद शरीफ से हमने किया है, क्योंकि तुम्हारे से भी ये हो। खौफ के ऊपर माफिया फंक्शन करता है। जो माफियाज हैं ये खौफ फैला के, ये लोगों को गुलाम बना के, खौफ के बुत के सामने झुका के ये लोगों के ऊपर हुकूमत करता है। और जो मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो ये खौफ तोड़ना है कौम का। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मार्च का वज़ीराबाद से गुजरात का सफ़र। जगह जगह पर वालेहाना इस्तकबाल हुआ। असद उमर ने गोजरा से टोबा टेक सिंह तक मार्च की क़यादत की। मार्च के शुरका की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कल मार्च का आगाज़ लाला मूसा से किया जाएगा। हकीकी आज़ादी मार्च जो कि अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है, आज उसका दूसरा रोज़ था। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मार्च का वज़ीराबाद से गुजरात तक का सफ़र मुकम्मल हुआ। पीटीआई मार्च का दूसरा रोज गुजरात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मार्च का दोबारा आगाज कल लाला मूसा से किया जाएगा। लॉन्ग मार्च की क़यादत नायब चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन ने की। मरकजी कायदीन में से शाह महमूद कुरैशी और हम्माद अजहर ने बुलेट प्रूफ शीशे वाले डाइस से खिताब किया। गुजरात में मार्च का पहला इस्तकबाल रामतली चौक पर किया गया। मार्च का दूसरा इस्तकबाल GTS चौक में PTI की मकामी क़यादत ने किया, जहां इमरान खान ने वीडियो खिताब किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने गोजरा से टोबा टेक सिंह तक मार्च की क़यादत की। कलमा चौक टोबा टेक सिंह पर शुरका से खिताब करते हुए कहा, इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की जरूरत बन चुके हैं। कप्तान का पैगाम है, क्या आपने देख लिया? मैं गोलियां खाकर भी खड़ा हूँ। क्या कौम अपनी गैरत के लिए
अपनी इज्जत के लिए खड़े होने के लिए तैयार है। पुलिस की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। हकीकी आज़ादी मार्च की मंजिल करीब, मुल्क भर से काफले रावलपिंडी की जानिब गामजन। इमरान खान रावलपिंडी से अवामी काफलों की क़यादत करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कप्तान पर हमले की हकीकी FIR का इंदराज और इलेक्शन की तारीख हमारे मार्च का नस्बुल ऐन है। कप्तान का अवाम की हकीकी आज़ादी का मिशन, कप्तान के हौसले बुलंद, खिलाड़ी भी हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म। हकीकी आज़ादी मार्च का सिलसिला वहीं से चल पड़ा जहां 3 नवंबर को आर्जी तौर पर रुका था। खिलाड़ियों का जोश आसमान पर पहुंच गया, हौसला पहाड़ों जैसा। खैबर पख्तूनख्वा से काफले निकलने के लिए तैयार। मानसहरा से लॉन्ग मार्च का आगाज आज से होगा। सूबे के दीगर अजला से भी काफले निकलेंगे। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर समेत मुल्क के तूलो अर्ज से भी काफले रावलपिंडी पहुंचेंगे। मार्च के शुरका रावलपिंडी पहुंचेंगे तो मरकजी मार्च में अवाम का ठाटे मारता समंदर होगा। इमरान खान रावलपिंडी से मार्च की क़यादत करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कप्तान पर हमले की हकीकी FIR का अंदराज और इलेक्शन की तारीख हमारे मार्च का नस्बुल ऐन है। कप्तान के आखिरी हुक्म तक इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं परवेज इलाही और मोनिस इलाही का शुक्रिया। काफ लीग वालों ने कप्तान का खिताब हमारे साथ सुना। गुजरात वालों ने तहरीक इंसाफ कप्तान का साथ देने का फैसला कर लिया। उनका मजीद क्या कहना था ये जानेंगे गुजरात में नुमाइंदा बोल न्यूज उसामा दुरानी से। जी उसामा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कुरैशी साहब, आज उन अफवाहों ने दम तोड़ दिया है जिनके ये कहा जा रहा था कि परवेज इलाही जो है वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े। आज सबने देख लिया कि पूरा गुजरात जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो शुक्रिया गुजरात और गुजरात के लोगों का जिन्होंने आज फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चौधरी परवेज इलाही का, मोनिस इलाही का, हुसैन इलाही का, उनकी पूरी टीम का। आज आपने देखा कि इस काफले में मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ दोनों जमातें मिलकर उन्होंने खान का खिताब सुना और खान के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। इंशाअल्लाह ये काफिला अब कल लाला मूसा की तरफ रवाना होगा। कल सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। बहुत शुक्रिया उसामा दुरानी। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI का लॉन्ग मार्च फौरी रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला, पंजाब के चीफ और होम सेक्रेटरीज और IG को नोटिस जारी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि हर सियासी जमात को आर्टिकल 16 के तहत पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन दौरे में सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मशवरे मुलाकातें। वज़ीर आज़म की हल्फ की खिलाफ वर्जी है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की माहिराना राय सामने आ गई। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो काम कर रहे हैं वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। नैब कवानीन उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए ख़त्म कराए, मुल्क के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे। साबिक अटॉर्नी जनरल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा ये लंदन जाते हैं, सजा याफ्ता नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म की हैसियत से डिस्कस करते हैं, उनसे कमांड लेते हैं। इसका मतलब वज़ीर आज़म बेख्तियार है और किसी और के कहने पर काम कर रहा है। उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी भी की है। उनके खिलाफ रेफरेंस होना चाहिए, उन्हें ओहदे से फारिग कर देना चाहिए। ये जाते हैं लंदन और नवाज शरीफ साहब से जो कन्विक्टेड आदमी है उससे ये कहते हैं कि मैं वो करूंगा जो नवाज शरीफ कहेंगे, और वो डिस्कशन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से एज अ प्राइम मिनिस्टर। और वो शख्स जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिसको ऐड करना चाहिए कि वो कम्युनिकेट नहीं करेगा या किसी शख्स को बताएगा नहीं या अंदरून बात जो है किसी तक पहुंचाएगा नहीं, वो सब बातें जो हैं वो उनसे जाके कर रहे हैं, उनसे वो ले रहे हैं, अपनी कमांड ले रहे हैं, जो वो कहते हैं वो करने को आ रहे हैं। अब एक कन्विक्टेड आदमी जो है वो इस मुल्क को चला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर बेनामी है। और जाहिर है बेनामी का मतलब ये है कि वो किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। नैब का कानून उन्होंने बदलवाया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए।
یہ جتنے بھی معاملات ہیں جس میں کہ ملک کی بھلائی ہونی چاہیے وہ کوئی نہیں ہو رہی ہے، مگر پوری دنیا میں چکر لگا رہے ہیں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ سب آفیشیل کنڈکٹ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں اور اپنا فائدہ کرا رہے ہیں. بہت واضح طور پر انہوں نے اپنے اوتھ کو جو ہے وائلیٹ کیا ہے، اور چونکہ اوتھ کو وائلیٹ کیا ہے اس لیے اب ان کو ان کے خلاف ریفرنس ہونا چاہیے اینڈ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دی آفس. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی. بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.